country that turned itself from the status of being into challenges to the status of being into chances. I belong to that country that turned itself from the status of being subordinate to the status of being superior. And you know which country I belong to? I belong to India, and I'm proud to be an Indian. A very greetings to one and all present here. I'm Hansika from St. Carol's High School. 75 years ago, when India was born, since then it started its journey to regain its glorious past. A journey started to achieve new heights. A journey started to become the largest democracy in the world. A journey to forget the agony of partition. A journey to forget the plethora of challenges. A journey to become the India that the world knows today. And in these 75 years, the change has been drastic. From health to education, from science to institution, everything changed. You don't trust me? Look where you are sitting, in the science center. So, people threw stones at us. And what we did? We turned them into the milestones. So here is a milestone to reflect on what India has achieved in these 75 years. And only the major achievements, because the country that you live in has made so many achievements that it cannot be compressed in a speech of 4 minutes. So, since beginning, India was that country that was eager to achieve something. And so it did. The very first achievement of India came in the form of equal right of voting that was given to everybody. Then, India became that kid who got into the habit of achieving. You don't trust me? Let me prove it for you. From winning the first Asian Cup in 1983 to hosting the first Asian Games in 1951. From the launch of first nuclear reactor Apsara in 1956 to the launch of Kamini, the only thorium-based nuclear reactor in the world. From the launch of Chandrayaan-1 in 1974 to the launch of Mars orbital mission and the only country to do it in the first attempt. From the successful launch of Smiling Buddha to the successful launch of Operation Shakti. From being the country of Gandhi to becoming the country of Subhash Chandra Bose. From being the country of Gandhi to becoming the country of Subhash Chandra Bose at the time of Uri and Balakot airstrike. From being the worst affected nation to becoming the nation with the most vaccinated number of people at the time of COVID. This is what the achievement of India looks like. Now you must be thinking that why did I really give this achievement in the series they are cut? The reason is to add one more achievement. The greatest achievement of India is that it never stopped achieving whatever came in the way. Great things come by combining small things. When people said that nobody can, we became that someone who can. This is India. So, last but not the least, I would like to wrap up my note with a fact that I believe that the greatest achievement of my country is its people. The people that I believe will always keep contributing to this unending journey of becoming a new every day, of achieving a new every day. Jai Hind. ये उत्सव है आजादी के इतिहास का, नए संकल्पों के साथ का, आत्मनिर्भरता के आगाज का, भारत के विश्व गुरु बनने के एहसास का। हमारे यहाँ वेदों में एक श्लोक है, मृत्यो मुक्ष्य मामृतात्, अर्थात हम दुख, कष्ट और विनाश से निकलकर अमृत की ओर बढ़ें। और इसी अमरता का महोत्सव आज हम मना रहे हैं। देश आजादी के 75 वसंत देख चुका है, 75 बरस यानी अमृत महोत्सव। इस दौरान देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, और आज देश जिस मुकाम पर खड़ा है उसमें कई अहम उपलब्धियों का योगदान है। और भारत की उपलब्धि तो आजादी के पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। 15 अगस्त 1947 आजादी का पहला दिन, जहां अमेरिका को 144 साल और ब्रिटेन को एक सदी का समय लगा महिलाओं को मतदान का अधिकार देने में, वहीं भारत ने आजादी के तुरंत बाद
सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया और एक परिपक्व लोकतांत्रिक देश होने का परिचय दिया। अच्छा, आप सभी ने एक भाषण आप सभी ने एक नारा जरूर सुना होगा और कभी कभी लगाया भी होगा, जय जवान जय किसान। जवान, हमारे जवानों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। भारतीय इतिहास में जवानों की इतनी सारी वीर गाथाएं और शौर्य गाथाएं दर्जित हैं कि मैं किन किन का वर्णन करूं। वैसे आप सभी को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक तो याद ही होगी। वो ऐतिहासिक दृश्य, क्या वर्णन करूं मैं उसका, जब पाकिस्तान के आतंकियों ने उरी हेडक्वार्टर्स पर हमला किया, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए। इसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। हमारे जवान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों के लॉन्च पैड्स और कैंप तबाह किए। इस तरह हमने बदला लिया। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एकमात्र प्राप्ति नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी कुछ यही छवि थी। हमने पाकिस्तान को अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराया और उसे यह भी बता दिया कि उसकी हर एक कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने विश्व को यह भी बता दिया कि ये भारत सिर्फ गांधी का भारत नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस का भी भारत है और ये नया भारत घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। खैर, देश के विकास के लिए जय जवान जय किसान। किसान और कृषि उद्योग किसी भी देश के विकास की एक अहम कड़ी। अब विकास करने और विकसित होने के लिए हमें करना होता है काम करने के लिए चाहिए ताकत आएगी खाना खाने से। वैसे खाना खाने से याद आया, आजकल जोमेटो और स्विगी बड़े प्रचलन में चल रहे हैं। खाना बनाने का मन ना हो या फिर किसी को खाना बनाना ना आता हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बस ऑर्डर करे और मन पसंदीदा खाना आपके दरवाजे पर। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत काम की है। लेकिन अगर सिर्फ इसी के निर्भर बैठा जाए और खुद खाना बनाना कभी सीखा ही ना जाए तो बात कुछ खास अच्छी नहीं रहेगी। कुछ ऐसी स्थिति थी हमारी आजादी के वक्त। 1960 के मध्य तक हम अंतरराष्ट्रीय खाद्य सहायता पर निर्भर थे। इस समय देश में अकाल जैसी भी स्थिति आ गई थी। तब जाकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की मदद से हमने आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम उठाया और शुरुआत हुई हरित क्रांति की। भारत जो पहले सिर्फ निर्यात करता था, आज आयात करने लगा। खाद्य पदार्थों में देश में बम्पर फसलें होने लगी। और सिर्फ यही नहीं, भारत की विकास गाथा तो हर क्षेत्र में प्रभावशाली है और ये गिनती अभी खत्म नहीं हुई है और ना कभी होगी। भारत जो पहले दूसरों पर निर्भर था, आज आत्मनिर्भर है और ये जितनी सारी उपलब्धियां हैं सिर्फ झांकी हैं। भारत का विश्व गुरु बनना तो अभी बाकी है। जय हिंद, धन्यवाद। It's the time. The right time is the priceless time of India. The power of countless arms spreads with hurrying speed, bright with autumn gleams, cool with the winds of delight. Green fields waving glory of moonlight dreams over the branches, and Lord's stream clad is blossoming the trees. The devotion of the country is everywhere. In these 75 years, India's growth story has been impressive. From agricultural production to nuclear and space technology, from affordable healthcare to world-class education institution, from Ayurvedic to biotechnology, from giant steel plants to IIT powers and whatnot, and having the third largest startup ecosystem. The establishment of vibrant democratic politics by our founding fathers and mothers, and the strengthening of those democratic values over the last 7.5 decades has been one of India's greatest achievements, which has given India great diversity in terms of geography, language, religion, prosperity and whatnot. ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर हमारे लिए शंकर है। I believe each and every person in this conference remember these beautiful lines by Atal Bihari Vajpayee, because these lines truly define what India is today. From fighting evils like striking down triple talaq, banning section 377 and fighting and ending section 370, we have successfully fight against all. And speaking about success, how can I not speak about the
about India winning its first gold medal in Olympic in 2008, winning its first Cricket World Cup in 1983, sending its first Indian man in space in 1984, to becoming first Asian nation to reach Mars orbit in its first event. India has done it all. If you really want to know what India has done in 75 years, we just need to turn back and look at the younger countries. They have become dead best of democracy, full-fledged factories of fantasism and sophisticated slaughterhouse of secularism. They handsomely top the list of human abusers, sexual predators and genocide generators. They have been roasted, ridiculed and implemented repeatedly on global platforms. That's their story. Now look back and look at us. We have been deeming beacon of democracy, social security and secularism. The whole world looked up to India, and yes, we have been challenged. Yes, we have been challenged, but we stood against the test of time. We have lived on and we have flourished. You know why? Because our roots run deep. India is in the blood that runs in our veins. It is in the air that we breathe. It's in the heart that beats. No wind of globalization or no storm of religion fantasm can even ruffle our reef, no matter what. This is what India is today, and we are what makes India what it is today. Jai Hind. Respected jury members, teachers, and my dear friends. I am Rishi Kumar from BD Public School, present over here to deliver a short speech and my views on the topic India's achievements in the past 75 years of its glorious Independence Day. From being deemed not to exist and fragmented into 560 pieces, India stood tall like a knight in a shining armor and today exists as one of the fastest growing economies and also as a global powerhouse. It has been a long journey. So allow me to take you to the India's stepwise succession from the very first day itself, from the independence itself. As I just told you, India was fragmented into 560 pieces. But with the heights of characters such as Sardar Vallabhbhai Patel, Pandit Jawaharlal Nehru, our very first president, it became possible that India was reunited. And unification of India became the very first achievement of India for it. Now later on, other achievements which included women's rights and etc. And let me remind you, India's equality is quite special and precious because unlike any other countries, including Britain, US, other rich countries, developed countries, they gave their women and other people in society independence after 100 and 200 years after independence. But India, being one of the very few countries, they granted equality to all sorts. From the very first second India became independent, and equality was enforced at the time of Constitution itself. Talking about Constitution, we all know that it was adopted on 26 January 1950. And this Constitution itself shaped India's procession of the future, what India today is. Now, this Constitution launched a chain reaction of events in sports, science, technology, food, and everything actually. So from talking about chain reaction, let me talk about science and tech. India has extensively researched in science and technology and invested in it for a long time. And Science Center itself is a lively, brilliant example of it. Other agencies like ISRO and DRDO have been very successful in teaming out Mangalyaan, Chandrayaan, DRDO being able to supply our soldiers with world-class military-grade equipment and many more. And also to add on, our first major achievement in this sector includes the building of our nuclear reactor and adoption of nuclear energy on 15th April 1948. And let me name the first reactor built, that was Apsara of course. And also later on, because of this field only, India became a nuclear superpower, which means India is one of the most respected nations in the world because of our scientists, namely Homi Jahangir Bhabha and APJ Abdul Kalam and countless others. There are countless achievements which cannot be counted in this short span of time. With this, I would say, I'm confused about many things in my life. That there's one thing I'm very certain of. I love my India. And I'm pretty sure everyone out here shares the same sentiments as I do. Thank you everyone. Thank you for your patience. Morning to all of you. I am Shukla Shreya of Standard 11. It's standing in front of you to share my views on the topic
development of science and technology in the 75 years of independence. As we all are aware of the Indian history, which was very old. In the ancient times, our development in this field was very astonishing. For example, we have heard about Indus Valley civilization, which was the well-developed and well-qualified civilization in the whole world. We have Rig Veda, Yajur Veda for the medical treatments. We have given zero and trigonometry to the whole world. Some of the scientists who played a very vital role in this era was Aryabhat, C.V. Raman and many more. As we also know that we are under the captures of Mughals, British, due to which our development rate decreases day by day. But after the independence, this decreasement increases and we are increasing the development at the peak now. In 1958, DRDO was established. It was the first step taken towards the development of science and technology. DRDO stands for Defense Research and Development Organization. Under the DRDO, we prepare number of missiles, atomic bombs, nuclear bombs, and etc. At Pokhran test in 1994 and in 1998, we have succeeded in the second time of the Pokhran test. Agni, Prithvi are the second examples that we success during ISRO. ISRO, after DRDO, ISRO was set up. In 1969, ISRO was set up. ISRO stands for Indian Space Research Organization. But by the work, it's always proved that it's always be impossible research organization. Because in the word impossible, I am possible is hidden, and by the achievements that ISRO has gotten, it is proved that it always be an impossible research organization. Many multinational companies in India like Aditya Birla Corporation, TISACO, Reliance, etc. are in India present now. But after the liberalization and after 1994, many foreign countries came into India like Amazon, etc. and many more, which has made aware us that our development was increasing day by day. At last, I would like to conclude that science and technology has a very profound impact in this era. Thank you. पीटी से प्रज्वलित हो रही स्वाधीनता के 75वीं अनुष्ठान, राष्ट्र प्रीति से प्रज्वलित हो रही स्वाधीनता के 75वीं अनुष्ठान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। कहते हैं सभी भारतीय, कहते हैं सभी भारतीय है भारत के संतान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। अपने देश के वैज्ञानिकों को मेरा शीश झुका सम्मान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। तकनीक और तरक्की करे, विकसित हो विज्ञान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। सफल होंगे स्वर्णिम भारत के सपने, नूतन स्वप्न वितान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। देश के प्रतिष्ठित श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र के इस भवन में उपस्थित निर्णायक मंडली, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई एवं बहन, आज भारत अपने आजादी के अमृतोत्सव में जिस लक्ष्य को ठाना था, आज उन्हें पाने को बेटा है। आने वाला यह 25 वर्ष, यह स्वर्णिम काल हम लोगों को एक नए भारत की रचना के लिए अपना प्रयास, अपनी पूर्ण प्रतिभा का प्रदर्शन करना। हम सभी जानते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री के सामने भारत निर्माण का एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। स्वयं एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी सक्रियता दिखाते हुए 1951 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर की स्थापना किया। उन्होंने अपने यशस्वी प्रयासों से साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया। हम सभी जानते हैं
कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी को, सर जब उन्होंने आर्यभट्ट का प्रथम परीक्षण किया था, उनके कैबिनेट के सदस्य भी नहीं जानते थे कि वो ये चीज कर रहे हैं। बिना किसी को बताए ये कितना बड़ा कार्य करना एक महिला होकर वो आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। निश्चित रूप से भारत मंडल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला, दुनिया का चौथा देश, एशिया का पहला देश और अपने प्रथम प्रयासों में ही द फर्स्ट पोजीशन, प्रथम प्रयासों में ही उन्होंने मंडल पर पहुंचा। ये भी हमारे लिए उपलब्धि है। आप जानते होंगे मंडलयान योजना, चंद्रयान योजना और अब पुनः मंडल पर पहुंचने की जो हमारी योजनाएं, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो सफल हो रही है। तो हम अपने वाणी के संबंध में कहना चाहेंगे कि इस समय देश में कुल 23 IIT हैं जो 1951 में केवल एक थी, उनका नाम हम यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे। वो है IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर, IIT गोवा, IIT पटना, IIT पलक्कड़, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT रोपड़, IIT तिरुपति, IIT धारवाड़ कर्नाटक, IIT धन्यवाद, IIT मांडा और IIT वाराणसी। इन सभी संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जाती है और हम अपने छोटे से श्लोक से इन सभा को, अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। वो है तापि शास्त्रे विनोदेना तालु दक्षिणिमिताम वही समीन च मूर्तान निदया तलेन। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद है कराया। सुप्रभात, मैं आकाशा रानी आर्य पब्लिक स्कूल दानापुर की छात्रा आपके सामने आजादी के 75 वर्षों की भारत की उपलब्धियां शीर्षक पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत आज अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। यह सभी देशवासियों के लिए बहुत ही खास अवसर है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आजाद हुआ। तब से लेकर अब तक भारत अनेक क्षेत्रों में विकास यात्रा की पहचान बना रहा है। 75 वर्षों की इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बने हैं। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। बीते 75 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याएं एवं चुनौतियों से लड़ते हुए भारत ने ऐसा कुछ जरूर हासिल किया है जिसकी तरफ दुनिया आकर्षित हो रही है। देश के पास गर्व करने के लिए उपलब्धियां हैं तो अफसोस जताने के लिए वजह भी है। देश नागरिकों से बनता है, समाज नागरिकों से बनता है और देश समाज से। एक बेहतर नागरिक एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। एक सच्चा समाज एक देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी तो मिली, लेकिन यह आजादी विभाजन के साथ है। भारत की जमीन पर एक नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया। भारत के पूर्वी पश्चिमी इलाके में बने इस नए देश पाकिस्तान की वजह से भारत को अपना बड़ा भूभाग खोना पड़ा। इसके बाद कश्मीरी और अक्साई चीन में भी हमें अपनी जमीन खोनी पड़ी। हालांकि सिक्किम को अपने साथ जोड़ने में हमारी सरकार कामयाब रही। तब से लेकर अब तक भारत ने अपनी सीमाओं की हिफाजत की है। आंतरिक चुनौतियां एवं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली कुटिल चालों को नाकामयाब करते हुए भारत अपनी अनेकता पर एकता और सांप्रदाय और धर्मनिरपेक्षता की भावना को बरकरार रखी है। आम आदमी के लिए नई नीतियां और योजनाओं को लागू किया गया है। इसका लाभ कमजोर एवं गरीब वर्गों तक पहुंचाया गया है। महत्वाकांक्षी योजनाओं से विकास की गति तेज हुई है। आर्थिक एवं आंतरिक क्षेत्र में भी भारत ने सफलता की लंबी छलांग लगाई है। अनेकों चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। सैन्य क्षेत्र में भारतीय सेना महाशक्ति बनकर उभर रही है। परमाणु हथियार से संपन्न आज भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। मिशन मंगल एवं रॉकेट प्रशिक्षण की क्षमता के बदौलत भारत आज दुनिया की अंतरिक्ष क्षेत्र में महारत हासिल करने वाली चुनिंदा देशों में शामिल है।
इन उपलब्धियों ने भारत को सुपर पावर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। बेहतर समाज एवं राष्ट्र एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर बेहतर भारत और न्यू एवं डिजिटल इंडिया का निर्माण हो पाएगा। भूल न जाना उन वीरों के बलिदानों को जिन्होंने हंस कर दिए थे इस दिन के लिए कुर्बान। आजादी की खुशियों को मनाकर लो शपथ, बनाएंगे भारत देश को और भी महान। जय हिंद, जय भारत। अतिथिगण एवं निर्णायक मंडली के सदस्य एवं यहाँ उपस्थित सारे मेरे मित्रों को मेरी तरफ से शुभ प्रभात। मैं अभियांशु कुमार सर्जिनी पाटलिपुत्रा की तरफ से आज यहाँ आप सभी के सामने भारत की उपलब्धियों जो कि आज़ादी के बाद प्राप्त हुई है वो गिनवाने आया हूँ। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आज यहाँ आप सभी के सामने भारत की आज़ादी के बाद 75 सालों में हुए विज्ञान की प्रगति के बारे में कुछ बातों को रखने आया हूँ। इससे पहले आइए थोड़ा विज्ञान के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। विज्ञान जिसके द्वारा कठिन से कठिन कामों को कम से कम समय में पूरा करना संभव हुआ। प्रगति के लिए विज्ञान ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा कम समय में काफी उन्नति की जा सकती है। विज्ञान के कारण ही मानव जाति का विकास संभव हो सका है। विज्ञान की मदद से एक क्षेत्र दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ सका तथा एक स्थान से दुनिया के किसी स्थान तक जाने में सहूलियत हुई। शहर, राज्य, देश तथा विदेश का हर क्षेत्र जिसने विज्ञान को समझा और उसकी मदद से खुद को प्रगति के मार्ग पर लाया, आज वो दुनिया के उन्नत क्षेत्रों में से एक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की भारत की आजादी सन 1947 ईस्वी में हुई थी। तब से लेकर अब तक विज्ञान बहुत ही विकसित हो चुका है। एक वह भी समय था जब सन 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में उस समय के शिक्षा मंत्री सर अब्दुल कलाम जी के द्वारा आजाद भारत में देश के पहले IIT का उद्घाटन 18 अगस्त को हुआ। और अब वह समय है जहां इस आजाद भारत में कुल 23 IIT और 31 NIT हैं। ब्रिटिश के द्वारा जब भारत को आजाद किया गया उस समय के बाद हमारे देश ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। विज्ञान की मदद से कृषि क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई है। 1960 के दशक में हुई हरित क्रांति इसका एक मुख्य उदाहरण है। विज्ञान की प्रगति के लिए भारत सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे विज्ञान नीति संकल्प, प्रौद्योगिकी नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तथा 5वीं नीति जो कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति सार्वजनिक परामर्श चरण में है। भारत की उपलब्धियां सिर्फ कृषि तथा आर्थिक विकास तक सीमित नहीं रही। रक्षा क्षेत्र में भी भारत को कई उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। आधुनिक मिसाइलें, बंदूकें तथा परमाणु हथियार आदि का विकास विज्ञान की मदद से दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है। मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे कि मंगलयान भी कहा जाता है, 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था तथा इसरो, नासा तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी आदि के बाद मंगल पर पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बनी। यह भारत का पहला अंतर्ग्रह मिशन होते हुए भी एशियाई राष्ट्र तथा अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम राष्ट्र बना। दुनिया के उन्नत देशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा डॉक्टरों की संख्या भी काफी ज्यादा है। विज्ञान की प्रगति दशक दर दशक बढ़ती ही जा रही है। एक समय था जब भारत को विज्ञान के क्षेत्र में कोई नहीं जानता था और अब वह समय है जब भारत विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत स्थान पर आता है। एक बात यह सत्य है कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और सदैव विश्व गुरु रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। यही जो रहा वो निचले प्रोग्राम्स है, DRDO, इसरो, हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात की। इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोग इनपुट्स के लिए देना चाहूंगा। मुझे लगता है इन चीजों पर भी आपको काफी ध्यान देने की जरूरत है। आगे जब भी आप कभी किसी प्रोग्राम में स्पीच के लिए जाएं, अगर इस तरीके के कुछ विषय आते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कृषि की बात की लेकिन अंदर तक पहुंच ज़्यादा नहीं पहुंच पाए, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात जरूर करें। उसमें बहुत सारे रिवोल्यूशन आपने पढ़ी होंगी, है ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं, व्हाइट रिवोल्यूशन की बात करते हो ना आप लोग, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद मेडिकल रिसर्च की बात बहुत ज़्यादा किसी ने कोई उसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमारे डेवलपमेंट का। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हम करते ही हैं हर फील्ड में। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आपने की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पॉइंट में जोड़ना चाहूँगा कि इसे जरा एम्फसाइज जरूर किया जाए, बच्चे जरूर करें इसको। फिर To the country that turned itself from the status of being into challenges to the status of being into chances. I belong to that country that turned itself from the status of being subordinate to the status of being superior. And you know which country I belong to? I